A very good morning to you, my dear students. Students, today we are going to revise chapter 9, Boli, of Footprint Without Feet. So, students, Boli is the story of Sulekha. She is a young girl neglected by all. Education transforms her, it inspires courage and confidence in her. She raises her voice for her rights. Now, students, we are going to discuss the characters which are used in this chapter. So, first is Boli. Boli, her real name is Sulekha and she is Nambardar. Nambardar, a person, is a village of high status. Ramlal's youngest daughter. School education changes her outlook towards life. Next is Ramlal, Boli's father. He is a prosperous father of 7 children who has a narrow mindedness. For him, daughters are born for marriage only. Next is Boli's mother. Boli's mother, she is a typical conservative mother. She does not take proper care of Boli. Next is Boli's school teacher. She educates Boli and encourages her. Next is Bishambar, Boli's prospective husband, who is a greedy man and a dowry seeker. Now we are going to discuss the summary of this chapter. So first is Boli's first few years. Boli was one of 7 children of Ramlal. Ramlal was a well-to-do man as he was the Nambardar of the village. There was no lack of comforts in his home, but Boli was still neglected. She fell off her cot when she was just 10 months, but Boli was 10 months old. Her brain suffered some damage and she was slow in learning things. So everyone called her Boli. An attack of smallpox at the age of 2 years left her pockmarked on her entire body. She learned to speak when she was 5, but she stammered. Everyone made fun of her. Even her parents took her to be just an ugly burden. भोली वॉज वन ऑफ 7 चिल्ड्रन. भोली जो थी वो 7 बच्चों में से एक थी ऑफ रामलाल के. रामलाल वॉज अ वेल टू डू मैन एज ही वॉज द नंबरदार ऑफ द विलेज. क्योंकि वो एक अमीर व्यक्ति था, क्योंकि वो एक नंबरदार था विलेज का. नंबरदार मीन्स ए विलेज, अ पर्सन इन अ विलेज ऑफ हाई स्टेटस. शी फेल ऑफ हर कोट. शी मीन्स जो भोली थी वो अपने सिर के बल गिर गई. When she was 10 months, जब वो केवल 10 महीने की थी. Her brain suffered some damage. उसका जो ब्रेन था वो उसमें कुछ डैमेज हो गया. And she was slow in learning. अब वो चीज़ों को धीरे से सीखती. So everyone called her भोली. इसलिए हर व्यक्ति उसे भोली कहता. An attack of smallpox, और उसकी जो जब वो 2 साल की थी तो उसके फेस पर स्मॉल पॉक्स हो गए और उसके जो मार्क्स थे वो उसकी पूरी बॉडी पर रह गए. शी लर्न टू स्पीक व्हेन शी वॉज 5 बट शी स्टैमर्ड. उसने सीखा जब वो 5 साल की थी, जब उसने बोलना सीखा. बट शी स्टैमर, किंतु वो अभी भी स्टैमरिंग करती थी, मीन्स हकलाती थी. एवरीवन मेड फन ऑफ हर. हर व्यक्ति उसका मजाक उड़ाता. इवन हर पेरेंट्स टुक हर टू बी जस्ट एन अगली बर्डन. और यद्यपि उसके जो पेरेंट्स थे वो भी उसे क्या समझते थे? बर्डन. नेक्स्ट पॉइंट इज बोली गोज टू स्कूल. बोली गोज टू स्कूल. वंस द तहसीलदार केम टू इनॉग्रेट अ न्यू प्राइमरी स्कूल इन द विलेज. ही आस्क्ड रामलाल टू सेंड हिज डॉटर्स टू स्कूल. रामलाल कुड नॉट से नो टू हिम. His wife objected that no one could marry the girls if they went to school. But then she felt that Boli was ugly and it would be difficult to get her married. So they decided to send only Boli to school.
एक बार जो तहसीलदार थे वो इनॉग्रेशन करने के लिए आए प्राइमरी स्कूल का उस विलेज में, तो उन्होंने रामलाल से कहा कि जो अपनी डॉटर्स हैं उनको स्कूल में भेजो। रामलाल कुड नॉट से, रामलाल उन्हें मना नहीं कर सकते थे, और उनकी वाइफ ने ऑब्जेक्शन किया कि यदि वो लड़कियों को स्कूल भेजेंगे तो कोई भी उनकी लड़कियों से शादी नहीं करेगा। किंतु देन शी फेल्ट, फिर उसकी वाइफ ने फील किया कि जो भोली है वो बहुत ज़्यादा अगली है और वो बहुत मुश्किल है कि उसकी से कोई शादी करे, इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो भोली को कहाँ भेजेंगे, स्कूल। नेक्स्ट इज भोली प्रिपेयर्स फॉर स्कूल। भोली किसके लिए रेडी हुई, स्कूल के लिए। भोली वॉज फियरफुल ऑफ गोइंग टू स्कूल एट फर्स्ट, देन शी वॉज गिवन न्यू एंड क्लीन क्लोथ्स टू वियर। She was given a bath and her hair was oiled. Now she felt better. She thought of school as a nice place. All these years no one had taken so much care of her. भोली जो थी was fearful, वो बहुत ज़्यादा डरती थी स्कूल जाने के लिए। जब वो पहले दिन स्कूल गई, देन शी वॉज गिवन, और फिर उसे जो नई थी, न्यू किया गया, नई और क्लीन कपड़े दिए गए पहनने को। शी वॉज गिवन आ बाथ, उसे नहलाया गया, उसके हेयर्स में ऑयल डाला गया। अब उसने फील किया कि वो एक अच्छी जगह पर जा रही है, क्योंकि उससे पहले कभी भी किसी ने उसकी इतनी केयर नहीं की। नेक्स्ट इज भोलीज फर्स्ट डे एट स्कूल। जो भोली का जो फर्स्ट डे था स्कूल में वो कैसा था। भोली फाउंड द क्लासरूम फुल ऑफ गर्ल्स लाइक हर। शी वॉज अफ्रेड एंड सैट इन वन कॉर्नर। शी वॉज अट्रैक्टेड टू द कलरफुल पिक्चर्स ऑन द वॉल। शी वॉज मच इम्प्रेस्ड बाय द रियलिस्टिक पिक्चर्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स। द टीचर आस्क्ड हर नेम. Bholi stammered and then started crying. After the other children left, the teacher came back to her. She called her lovingly. This time Bholi was able to speak her name better. The teacher encouraged her. She asked her to be fearless. She also told her to come to school every day. Bholi felt as if a new life was beginning for her. भोली ने पाया कि जो क्लासरूम है वो फुल है गर्ल्स से, उसकी तरह जो लड़कियां थी वहाँ पर थी। शी वॉज एफ्रेड, और वो डरती थी, और डर की वजह से वो एक कॉर्नर में बैठ गई। शी वॉज अट्रैक्टेड, वो अट्रैक्ट हुई जो कलरफुल पिक्चर्स बनी हुई थी वॉल पर। शी वॉज मच, बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुई जो रियलिस्टिक पिक्चर्स थी बर्ड्स की और एनिमल्स की। मीन्स वो जो बर्ड्स और एनिमल्स बने हुए थे वॉल्स पर, उनको वो कंपेयर करती थी अपनी रियल लाइफ से। दी टीचर ने उससे पूछा उसका नेम। भोली स्टैमरिंग करने लगी, मीन्स हकलाने लगी, और फिर वो रोने लगी। आफ्टर द अदर चिल्ड्रन लेफ्ट, जब सारे बच्चे चले गए, टीचर उसके पास वापस आई और उससे लविंगली तरीके से पूछा। दिस टाइम भोली वॉज, और जब इस समय जो भोली थी उसने अपना नेम अच्छे से बताया। द टीचर ने उसे एनकरेज किया। ही आस्क्ड हर टू बी फियरलेस, और उससे कहा कि अपने डर को छोड़ दे। शी ऑल्सो टोल्ड हर, उसने उसे स्कूल यह भी कहा कि वो डेली स्कूल आए। भोली फेल्ट, भोली ने फील किया एज इफ अ न्यू लाइफ वॉज बिगनिंग फॉर हर, जैसे कि उसकी जो नई लाइफ थी वो स्टार्ट हो रही थी। नेक्स्ट वन इज अ मैच फॉर भोली। After a few years, Bholi's parents got a marriage proposal for her. Ramlal was not very happy. The man was a widower with grown-up children, but his wife was unconcerned. She just felt that as Bholi was so ugly, that proposal was good for her. Her father wanted to know how Bholi felt about the proposal, but her mother refused to ask Bholi about it. After a few years, कुछ सालों के बाद भोली के जो पेरेंट्स थे गोट अ मैरिज प्रपोजल, उनके पास एक प्रपोजल आया भोली की शादी का। रामलाल वॉज नॉट वेरी हैप्पी, वो बहुत ज़्यादा
खुश नहीं था, वो खुश नहीं था। रामलाल भोलीज फादर। दी मैन वॉज अ विडोवर, क्योंकि जो मैन था, जिस व्यक्ति से उसका प्रपोजल आया था, वो कैसा था? विडोवर, मीन्स उसकी वाइफ नहीं थी और उसके बड़े बच्चे थे। बट हिज वाइफ वॉज अनकंसर्न, किंतु उसकी वाइफ ने कोई भी चिंता व्यक्त नहीं की। शी जस्ट फेल्ट, उसकी जो वाइफ मीन्स जो बोली की जो मदर थी, वो यह सोचती थी कि बोली जो कि बहुत ज़्यादा अगली है, दैट प्रपोजल वाज गुड, और उसके लिए यह प्रपोजल बहुत ज़्यादा अच्छा है। हर फादर वॉन्टेड टू नो हाउ बोली फेल्ट, और उसके पिता जानना चाहते थे कि जो बोली है उसकी इच्छा को जानना चाहते थे उस प्रपोजल के लिए। क्यों? क्योंकि एक तो उसका एक पैर खराब था, ऊपर से वो उसकी वाइफ जो थी वो नहीं थी और उसके बड़े बच्चे थे, और नेक्स्ट बात यह थी कि वह उससे डबल एज का था। बट हर मदर, किंतु उसकी मदर ने रिफ्यूज़ कर दिया कि वो उसके जो फादर है वो बोली से इसके बारे में कोई भी बात नहीं करेंगे। नेक्स्ट इज भोलीज स्टैंड अप फॉर हर राइट्स, कि वो अपने अधिकारों पर कैसे खड़ी रही। When the wedding was about to take place, Bishambar Nath asked for 5,000 rupees to marry Bholi as she had pockmarks. He also threatened to walk away from the ceremony. Ramlal was afraid of the humiliation, and so, with tears in his eyes, he handed the dowry money to Bishambar. Bishambar proceeded to garland Bholi, but Bholi threw the garland away. She asked her father to take back the money and refused to marry the greedy coward. Everyone went away. Ramlal asked her what she would do now. She just told him she would work as a teacher in the same school where she had studied. Her education has changed her outlook. When the wedding was about to take place, जब जो शादी थी वो जिस जगह पर हो रही थी, जब शादी होना स्टार्ट हुई, तो बिशंबर जो कि लड़का था जिससे भोली की मैरिज हो रही थी, नाथ ने उसके जो फादर हैं उसके लिए उससे कहा कि वो उसे 5,000 रुपीज़ दें भोली से शादी करने के लिए, क्योंकि उसके कैसे मार्क्स हैं? पॉक मार्क्स हैं। और उसे यह भी धमकी दी कि यदि वो उन्हें पैसे नहीं देगा तो वो शादी छोड़कर चला जाएगा। इससे जो भोली के जो फादर थे वो बहुत ज़्यादा डर गए। किससे? कि उनकी क्या होगी? ह्यूमिलिएशन होगा, उनका अपमान होगा। इसलिए उनकी आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने जो दहेज की जो मनी थी वो बिशंबर को दी। बिशंबर प्रोसीडेड टू गार्लैंड, और बिशंबर जैसे ही भोली को माला पहनाने वाला था, भोली ने गार्लैंड को फेंक दिया। शी आस्क्ड, और उसने अपने फादर से कहा कि अपनी जो दी हुई मनी है वो वापस ले ले और उससे शादी करने को मना कर दें। एवरीवन, सभी व्यक्ति चले गए। रामलाल ने अपनी बेटी से पूछा कि अब वो क्या करेगी। उसने केवल यह बताया कि अब वो एक टीचर के रूप में वर्क करेगी उसी स्कूल में जहाँ से उसने एजुकेशन प्राप्त की। इसी तरीके से उसकी जो एजुकेशन है और उसकी जो टीचर थी उसने उसकी पूरी जो आउटलुक था उसको चेंज कर दिया। नाउ स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू discuss some sentences which are highlights this chapter. So first is Boli, who is the fourth daughter of Nambardar Ramlal in a village, was a simple and pock-marked girl. Her real name was Sulekha. At 10 months, she fell off her cot, damaging her brain and making her a simpleton. At 2 years, she was a victim of smallpox, which left her pock-marked. She learned to talk at 5 years but used to stammer. When a primary school was opened in the village, the Tehsildar told Ramlal to send his daughters to school. Though Ramlal's wife felt that sending daughters to school affected their chances of marriage, Boli's parents decided to send Boli to school because they felt she would be difficult to get married anyway as she was ugly. Next is Boli was initially afraid of going to school, but due to encouragement of her teacher, she continued her studies. After a few years, the village became a small town.
and Bholi received an offer of marriage from a widower who was lame but rich. He also did not ask for any dowry. At the time of wedding, the bridegroom saw Bholi's pock-marked face and demanded 5,000 as dowry, which Ramlal gave. Bholi refused to marry the greedy widower. She later on said that she would take care of her parents and teach in the same school where she got her education. So students, I hope you must have understood the summary of this chapter. So students, thank you so much.